तो चलिए हम लोग अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड आर्टिकल 22 का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. नाउ क्लॉज 4 says of Article 22 that no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months. इसमें 3 months मार्क कर लीजिएगा. Unless an advisory board consisting of a person who are or have been or are qualified to be appointed as the judges of the High Court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention, provided that nothing in this subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by law made by Parliament under subclause B of clause 7, or such person is detained in accordance with the provision of any law made by Parliament under subclause A and B of clause 7. Clause 5 says, where any person is detained in pursuance of an order made under the law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. अब एडवाइजरी बोर्ड को लेके तो मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ, पहले जरा आर्टिकल 22 के क्लॉज 5 का डिस्कशन कर लेते हैं. अब इसमें दो चीज़ों पे गौर करिए. आर्टिकल 22 के क्लॉज 5 के दो लिम्स हैं. पहला लिम कहता है कि द डिटेनिंग अथॉरिटी इज टू कम्युनिकेट टू द डिटेन्यू द ग्राउंड्स ऑफ हिज डिटेंशन एज सून एज मे बी. दूसरा लिम है द डिटेन्यू इज टू बी अफोर्डेड the earliest opportunity of making the representation against the order of detention. अब Constitution itself has woven into the fabric of preventive detention natural justice. ठीक है, by incorporation of clause 5 of Article 22. Since these rights are granted to the detainee by Article 22 clause 5, if any of these rights is violated, the detention order would become bad. ठीक है, Supreme Court said so very categorically in the case of Abdul Karim versus State of West Bengal. Citation is AIR 1969 Supreme Court page number 1028. That the right of representation under Article 22 clause 5 is a valuable constitutional right and is not a mere formality. If you see Article 22 clause 5 very deeply, you would realize that there is a relation between these two limbs, जो मैंने अभी दो limbs बताए. पहला, ground of his detention are to be communicated to the detainee so as to enable him to defend himself. From this, it postulates that the courts have to ensure that the detaining authority communicates the grounds to the detainee in such manner that his constitutional right to make a representation against his detention is exercised effectively. अब जो वर्ड यूज किया गया है वो है कम्युनिकेशन. ठीक है, द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इज कम्युनिकेशन. तो इसका एक बड़ा अच्छा सा इलस्ट्रेशन ये हो सकता है कि लेट अस सपोज अ पर्सन फ्रॉम तमिलनाडु इज अरेस्टेड इन दिल्ली. ठीक है, ही ओनली नोज तमिल. प्रिवेंटिव डिटेंशन में इज अरेस्टेड एंड ही ओनली नोज तमिल. अब जो डिटेनिंग अथॉरिटी है वो जो ग्राउंड्स उसे बताती है कि किस ग्राउंड पे आपको डिटेन किया गया है वो इंग्लिश या हिंदी में बताती है. तो क्या आर्टिकल 22 के क्लॉज 5 का कंप्लायंस हो गया? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इज कम्युनिकेट्स. ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमेशा बायलैटरल होता है, यूनिलैटरल नहीं होता. कि मतलब एक पार्टी जो इन्फॉर्मेशन दे रही है और दूसरी पार्टी जो है इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रही है और अंडरस्टैंड कर रही है, ये दोनों नेसेसरी पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के. अगर आप मुझसे चाइनीज़ में बात करने लगो और मुझे मैंड्रिन आती नहीं है, ठीक है, मुझे मैंड्रिन लैंग्वेज आती नहीं है जिसको आप चाइनीज़ लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में देर इज़ नो कम्युनिकेशन. आप कुछ बोल रहे हैं और मैं कुछ साउंड सुन रहा हूँ, बट कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं है. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है आप मुझे मैंड्रिन में कुछ लिख के भेज दें, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसमें से, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन की स्थिति नहीं है. तो याद रखिएगा, कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल. तो हमारे एग्जाम्पल में जो तमिलनाडु से बंदा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन किया गया है उसको तमिल या उस लैंग्वेज में इन्फॉर्म करना है जिस लैंग्वेज को वो समझता है. ठीक है, ओनली देन इट कैन बी कॉल्ड कम्युनिकेशन.
अब जो कम्युनिकेशन शब्द जो ऑकर हो रहा है वो एक क्वालिफिकेशन के साथ ऑकर हो रहा है कि साथ ही साथ जो ग्राउंड्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स जिसके कारण डेटेन्यू हैज बीन डिटेन्ड. तो इट मीन्स दैट द बेसिक फैक्ट्स, द डॉक्यूमेंट्स and the materials which went into the subjective satisfaction of the authority to detain him must be communicated to the detainee. ठीक है, क्या 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 communicate करना है? Basic facts, documents और हर वो material which went into subjective satisfaction of the authority to exercise its power of preventive detention. ठीक है, detention order would become illegal and bad and would be set aside by the court if any of the factual components constituting the real grounds for detention are not fairly and fully put across to the detainee. The reason being that if some facts are held back from him, his right to make an effective representation against the detention would be infringed. So time and time again it has been emphasized that Article 22 Clause 5 vests a real and not an imaginary or illusory right in the detainee. The communication of facts is the cornerstone of his right of representation, and the order of detention passed on uncommunicated material is unfair and illegal. ये पॉइंट्स अपने दिमाग में अभी रखिएगा. इस पे मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ. अभी जो मैंने जितने भी एजर्शंस किए अब इस पे मैं इलस्ट्रेशन देता हूँ. पहला क्या है, यही सफिशिएंट हो जाएगा, ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. ये है खुदीराम दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 550. अब इन दिस केस, in the grounds of detention communicated to the detainee, 3 incidences were mentioned. The district magistrate had before him the detainee's history sheet at the time of making the detention order, but none of the injurious facts contained there was communicated to the detainee. The detainee argued that the magistrate was influenced in making the order by the material in the history sheet which was not communicated to him, and thus his right under Article 22 Clause 5 was infringed. The magistrate asserted in an affidavit that beyond the 3 grounds communicated, he did not take any material from the history sheet into the account in passing the order. The state asserted that the court should accept the affidavit of the magistrate and should not probe into the nature of the material before the district magistrate or whether or not he was influenced in making the detention order on the basis of history sheet. Basically state ने बोला कि अब इस बात को आप जाने दीजिए कि मैजिस्ट्रेट ने क्या क्या मटेरियल देखा. अब जो मैजिस्ट्रेट अपने एफिडेविट में बता रहा है उसको मान लीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि एज द कस्टोडियन ऑफ द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट इट वाज इट्स ड्यूटी टू सेटिस्फाई इटसेल्फ वेदर देयर वर अदर मटेरियल्स व्हिच could have influenced the district magistrate in arriving at his subjective satisfaction, but which he did not communicate to the detainee. Whether the other materials on record had or had not any effect of his mind could not be decided solely on the magistrate's ipse dixit. इसका मतलब है कि मैजिस्ट्रेट के सिर्फ कहने पे नहीं डिसाइड हो सकता, या हम डिसाइड करेंगे. हम मतलब सुप्रीम कोर्ट. Article 22 Clause 5 insists that all the basic facts and particulars which influence the detaining authority in arriving at its satisfaction must be communicated to the detainee. It is therefore the duty of the court to examine what were the basic facts and the materials which actually weighed with the district magistrate in reaching his satisfaction, and to this end the court can require him to produce before it the entire record of the case which was produced before him. If there was before the district magistrate material against the detainee of a highly damaging character and having nexus and relevancy with the object of detention, then because of the proximity with the time when the subjective satisfaction forming the basis of the detention order was arrived at, it would be legitimate for the court to infer that such material must have influenced him in arriving at his subjective satisfaction,
and in such a case, the court would refuse to accept the bald statement of the magistrate that he did not take such material into account. It is elementary that the human mind does not function in compartments. All such material should be communicated to the détenu, and the failure to do so would vitiate the detention. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे. लेकिन केस में हुआ क्या? अब हुआ ये कि सब कुछ सारा मटेरियल कोर्ट ने मंगाया और बोला कि द मटेरियल फ्रॉम द हिस्ट्री शीट विच वॉज नॉट डिस्क्लोज टू द petitioner did not form the part of ground of detention on which the order of detention was made by the district magistrate and which was approved by the state government, but merely constituted other particulars communicated by the district magistrate to the state government, and therefore there was no obligation on the district magistrate or the state government to disclose this material to the petitioner, and the non-disclosure of which to the petitioner did not have the effect of invalidating the approval of the state government to the order of detention. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मेन जो मटेरियल्स था वो आपको मिल चुका था. हाँ, वो जो हिस्ट्री शीट वाला जो मटेरियल था दैट वाज नॉट रेलेवेंट. ठीक है, वो मंगाया तो गया था, रिकॉर्ड में तो था, मटेरियल में तो था, बट सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली फाउंड दैट it merely constituted other particulars which were communicated by the DM to the state government. Hence, Supreme Court didn't found that material to be of such a level or having a nexus and relevancy with the object of detention that would mandate the history sheet to be disclosed to the petitioner. Supreme Court ने कहा ये इतना important था नहीं, तो वो other particulars की category में fall करता था, और literally after pursuing the entire record of the case, Supreme Court came to the conclusion that it merely constituted the other particulars, and hence there was no obligation on the district magistrate or the state government to disclose this material to the petitioner. वो एक हिस्ट्री शीट ही थी, that's it. अच्छा, आपको बता भी दूं कि क्यों हिस्ट्री शीट को उतना मटेरियल नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट ने. देखिए, दो सर्कमस्टेंसेस मेन थे. पहली बात तो जो petitioner थे, इनकी habit थी to commit thefts of copper wires and committed thefts of copper wires and thefts of transformers from the villages. तो हिस्ट्री शीट में जो फैक्ट का मेंशन था, it was merely a generalization of the three incidents which were referred to in the grounds of detention. तो वो by itself कोई additional material नहीं था, वो generally उन्हीं grounds को मेंशन कर रहा था जिसका material डेटेन्यू को ऑलरेडी दे दिया गया था. ठीक है, और जो दूसरा सर्कमस्टेंस था वो ये था कि the material merely provided the background of the social malady which must have been in the mind of the authority charged with administration of law and order when it said that there were several thefts of transformers from certain villages. It was in context of that background that the three incidents referred to in the grounds of detention were considered by district magistrate, and those three incidences and those grounds were adequately supplied to the détenu. ठीक है? So, according to the Supreme Court, the thefts of the transformers referred to in the second circumstances were not attributed to the petitioner. They merely provided the backdrop of the prevailing situation in the area and did not constitute a material prejudicial to the petitioner which ought to have been disclosed to him. There was therefore no material before the DM other than the three incidences set out in the ground of detention, which went into the formation of the subjective satisfaction of the district magistrate and which ought therefore to have been communicated to the petitioner. So obviously communicate ho gaye the, hence the petition did not succeed and the Supreme Court dismissed the petition. अब दूसरा केस है प्रकाश चंद्र मेहता वर्सेस कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ केरला AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 687. अब इसमें एक ऑर्डर ऑफ डिटेंशन वाज पास्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ कॉफी पोसा एक्ट. ठीक है, यही वही है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड्स, मतलब जो ग्राउंड शब्द अकर होता है उसको लेके एक इंटरप्रिटेशन किया और बोला कि द एक्सप्रेशन ग्राउंड्स इंक्लूड्स not only the conclusion of facts but also all the basic facts
on which those conclusions were founded. यही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया सोफिया गुलाम मोहम्मद बान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में. उसका साइटेशन है AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3051. जो केस लॉ बता रहा हूँ ये केस लॉ का नाम नहीं उतना एसेंशियल है जितना कंसेप्ट एसेंशियल है. ठीक है, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात रीइटरेट की कि रिप्रेजेंटेशन कैन बी मेड एंड द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन कैन बी असेल्ड ओनली when all the grounds on which the order is based are communicated to the detenue and the materials on which those grounds are based are also disclosed and the copies thereof are supplied to the person detained in his own language. तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली बता दिया that the word ground used in Article 22 Clause 5 means not only the narration or conclusion of the fact but all the materials on which those facts and conclusions आर बेस्ड. अब इसका लॉजिक बहुत आसान है समझना. देखिए, डेटेन्यू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन तभी तो मेक कर सकता है जब वो अंडरस्टैंड करे कि डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट क्या है ना, डिटेल्स क्या है, और उसी के बेसिस पे तो एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कर सकता है कि भाई मुझे डिटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है या मेरा डिटेंशन ऑर्डर इनवैलिड है ना. तो दिस इज़ वाई आर्टिकल 22 क्लॉज 5 कास्ट अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट to consider the detainee's representation as early as possible, and an effective representation can only be made when all the materials on which the conclusion of facts which went in the making of preventive detention order are adequately supplied to the detenue. ठीक है, हर वो फैक्ट, हर वो डॉक्यूमेंट, हर वो कंक्लूजन जिसके बेसिस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर मेड हुआ, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू. अदरवाइज द डिटेन्यू वुड नॉट बी एबल टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और अगर वो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं मेक कर पाएगा तो आर्टिकल 22 के क्लॉज 5 का वायलेशन होगा. अब सोफिया गुलाम मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो डॉक्यूमेंट्स थे जिस पे डिटेंशन ऑर्डर बेस्ड था वो सारे के सारे नहीं सप्लाई हुए थे. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में डिटेंशन ऑर्डर वॉज क्वाश्ड बाय द कोर्ट बिकॉज आर्टिकल 22 क्लॉज 5 वॉज हेल्ड टू बी वायलेटेड. और यही पॉइंट आपको नंबर ऑफ केसेस में मिलेगा. रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है उनका, आपको बस कंसेप्ट ध्यान रखना है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर द केस लॉज इन दिस ग्रेट डिटेल. ठीक है, अब सवाल उठता है कि लेट अस सपोज आई एम दी अथॉरिटी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर मेक कर रहा है. ठीक है, एंड आई एम अबाउट टू डिटेन यू. मैंने आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर, आपके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर पास कर दिया एंड नाउ यू आर डिटेन्ड. अब मुझे पता है मेरे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आई हैव टू सप्लाई यू विद द ग्राउंड्स. ठीक है, और हर ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, वो फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट सब आपको सप्लाई करना है. तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं एक इंस्टॉलमेंट में दे दूं सारे ग्राउंड्स या मैं आपको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स दूं. एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक मंथ, दूसरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दूसरे मंथ, तीसरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट तीसरे मंथ. किस तरीके से मैं करूं? एम आई टू कम्युनिकेट ऑल इन वन गो और एम आई टू कम्युनिकेट इन सेपरेट इंस्टॉलमेंट्स? द आंसर इज that I have to communicate all the grounds of detention that were available with me and relevant in one single go. एक ही इंस्टॉलमेंट में सब बताना है. मैं ये नहीं कर सकता कि आई एम स्प्लिटिंग द ग्राउंड्स और एक ग्राउंड एक महीना बताया, दूसरा ग्राउंड दूसरे महीने बताया, तीसरा ग्राउंड तीसरा महीना बताया. दैट इज़ नॉट अलाउेबल. ठीक है, याद रखिएगा. Article 22 Clause 5 requires that all the grounds which operate to create the subjective satisfaction of the detaining authority to issue the detention order must be communicated to the detainee and nothing should be held back. अगर ये सारे grounds जो हैं they are available with the detaining authority and they are in existence, then their non-communication earlier would amount to a breach of Article 22 Clause 5 insofar they were not communicated to the detainee as soon as may be, which is required by Article 22 Clause 5. ठीक है, याद रखिएगा कि Article 22 Clause 5 कहता है कि as soon as may be communicate करिए. तो अगर मैं ग्राउंड्स जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उन्हें स्प्लिट करने लगा और
सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स में आपको ग्राउंड बताने लगा, देन दैट वुड बी द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 5। अब इस पॉइंट पे जो पहला केस है जो मुझे बताना है वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस वैद्य, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 157, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली कि ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन वन इंस्टॉलमेंट। वंस द ग्राउंड्स हैव बीन कन्वेड टू द डिटेन्यू, फ्रेश, न्यू और एडिशनल ग्राउंड्स कैन नॉट बी एडेड देयर टू लेटर टू स्ट्रेंथन द ओरिजिनल डिटेंशन ऑर्डर। ठीक है, और रीजन ये है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 5 रिक्वायर्स दैट ऑल द ग्राउंड्स व्हिच ऑपरेट टू क्रिएट द सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन ऑफ द डिटेनिंग अथॉरिटी टू इशू द डिटेंशन ऑर्डर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू एंड होल्डिंग बैक एनी ऑफ द grounds are not allowed. Therefore, if the additional grounds which were non-existent at the time of detention order was made, then these were not the elements to bring about the subjective satisfaction of the detaining authority to make the detention order in question, and hence they would be irrelevant. On the other hand, if the grounds were in existence at that time, their non-communication earlier would amount to the breach of Article 22 Clause 5. insofar as they are not communicated to the detainee as soon as may be। ठीक है, अब इसी के साथ एक और केस है, वो है उजागर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 350। क्योंकि ये जो एडिशनल ग्राउंड्स वाला जो पॉइंट है ना उसको थोड़ा अच्छे से बताता है। वो बताता है कि जो प्रोहिबिशन टू सर्व एडिशनल ग्राउंड्स है आफ्टर इनिशियल ग्राउंड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बीन मेड, that does not extend to furnishing additional facts, data or particulars on which the grounds were based। ठीक है, बेसिकली बात ये कही जा रही है कि जो प्रोहिबिशन है, जो आप एडिशनल ग्राउंड्स नहीं मेक कर सकते, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं, वो ग्राउंड्स बना चुके हैं जिसके बेसिस पे आपने किसी को डिटेन किया, तो बाद में आप एडिशनल ग्राउंड्स नहीं ला सकते फॉर फर्दर जस्टिफाइंग इट, क्योंकि दैट डजंट फॉर्म द पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। लेकिन आप वो फैक्ट्स, डेटा या पर्टिकुलर्स जिन पे वो ग्राउंड बेस है उनको ज़रूर एक्ट कर सकते हैं इन द इनिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टेस्ट प्रॉपरली ये होता है कि वेदर द सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन कंटेन्स एनी एडिशनल ग्राउंड्स और ओनली एडिशनल फैक्ट्स ऑन विच द ग्राउंड्स ओरिजिनली कन्वेड वर बेस्ड। ठीक है, फिर से सुनिए, the test is whether the subsequent communication contains any additional grounds or only additional facts on which the grounds originally conveyed were based। अगर वो additional facts ही की बात करता है जिस पे original grounds based थे, तो ऐसी situation में आप वो facts बाद में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप subsequently additional grounds add कर रहे हैं, then that is not allowed। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इवन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एडिशनल फैक्ट्स मस्ट बी विद इन द रीजनेबल टाइम लिमिट, अदरवाइज डिटेन्यूज राइट अंडर आर्टिकल 25 क्लॉज 5 टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन वुड बी ब्रीच्ड। अब इन फैक्ट्स को भी लेके डिटेनिंग अथॉरिटी ये नहीं कर सकती कि वो मनमाने टाइम पे उनको प्रोवाइड करे, नो, उसको रीजनेबल टाइम में प्रोवाइड करना है, अदरवाइज फिर से आर्टिकल 22 क्लॉज 5 ब्रीच हो जाएगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 22 देखिएगा, जो बोलता है कि अथॉरिटी के पास ये प्रिविलेज है कि वो ग्राउंड्स ना डिस्क्लोज करे जिनको डिस्क्लोज करने के बाद पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर। ठीक है, आर्टिकल 22 क्लॉज 6 says nothing in clause 5 shall require the authority making the order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against public interest to disclose। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्लॉजेस डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है जिससे अथॉरिटी को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र करेंगे। कौन कंसिडर करेगा कि द ऑब्लिगेशन दैट पब्लिक इंटरेस्ट वो सफ़र, दैट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द डिटेनिंग अथॉरिटी एंड नोबडी एल्स। ठीक है, ये सिर्फ डिटेनिंग अथॉरिटी कंसिडर करेगी कि वेदर द डिस्क्लोजर ऑफ एनी फैक्ट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट। डिटेनिंग अथॉरिटी अगर चाहे तो एडवाइजरी बोर्ड के सामने वो फैक्ट्स भी सप्लाई कर सकती है which it considers that कि अगर वो रिवील हो गया तो पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र करेंगे। वो एडवाइजरी बोर्ड को तो दिखा सकती है इवन दो इट हैज़ नॉट सप्लाइज दोज फैक्ट्स टू द डिटेन्यू। ठीक है, प्रोवाइडेड उस पर क्लॉज 6 अप्लाई कर रहा है। क्लॉज 6 किस चीज़ से डील करता है? पब्लिक इंटरेस्ट वाले पॉइंट से। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ है जो डिटेन्यू जिसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है। डिटेन्यू ये नहीं डिमांड कर सकता कि
किन कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से डिटेंशन ऑर्डर बेस्ड है, ठीक है। तो मान लीजिए डिटेन्यू कहे कि किस ऑफिसर ने या किस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने मेरे खिलाफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, या कहाँ से किस रास्ते से पता चला, ये इंफॉर्मेशन नहीं अलाउड है, विच आर कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। डिटेन्यू is only entitled for making an effective representation, or he is only entitled for the disclosure of that material जिसके बेसिस पे वो एक effective representation make कर सकता है। उस मटेरियल का सोर्स रेलेवेंट नहीं है उसके लिए, ठीक है। याद रखिएगा, वो मटेरियल जिस पे डिटेंशन ऑर्डर बेस्ड है वो रेलेवेंट है, उस मटेरियल का सोर्स क्या है ये रेलेवेंट नहीं है। एक और चीज़ जान लीजिए कि यूजुअली जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है ना, they would not exercise their writ jurisdiction, specifically the writ of mandamus at the pre-arrest stage। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे let us suppose a preventive detention order has been passed और जो पर्सन है जिसके खिलाफ पास हुआ है वो भागा भागा फिर रहा है, ठीक है, अभी अरेस्ट नहीं हुआ, और उसने रिट पिटिशन अप्लाई किया कि भाई रिट ऑफ मैंडेमस दीजिए कि ये नो हमें डिटेन ना करें एंड सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। इस पे लॉ ये है, जो जनरल रूल है वो ये है कि इंटरफेरेंस बाय रिट कोर्ट एट द प्री एग्जीक्यूशन और प्री अरेस्ट स्टेज टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन कैन टेक प्लेस ओनली इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट दे आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही रिट कोर्ट इंटरफेयर करते हैं एट द प्री अरेस्ट स्टेज ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। एज अ जनरल रूल दे वुड नॉट इंटरफेयर एट द प्री अरेस्ट स्टेज, ठीक है। इसके लिए अगर आपको कोई अथॉरिटी जाननी है तो ये कई केसेस में बोला गया है, बट यू कैन सी द केस ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी वर्सेस अलका सुभाष गाड़िया 1992 सप्लीमेंट्री वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 496। Now let us go further. Now imagine a situation where the detaining authority supplies inadequate or vague grounds for the detenue. Would that be a sufficient compliance to Article 22 Clause 5? The answer is no. ठीक है, detenue should be placed in a position so that he can make an effective representation against his detention, and he cannot make an effective representation unless the grounds of detention are communicated to him in clear and unambiguous terms, ठीक है। You must always keep that in mind. That is the essence of Article 22 Clause 5. आप उन्हें वेग या inadequate particulars अगर सप्लाई करेंगे डिटेन्यू को, तो ऐसे में ये फिर जस्टिशिएबल मैटर बन जाएगा एंड द कोर्ट विल इंटरफेयर विद दैट पॉइंट, ठीक है। कोर्ट फिर इंटरफेयर करेगी डिटेंशन ऑर्डर से, क्योंकि जहाँ पे भी ग्राउंड सप्लाइड टू द डिटेन्यू आर वेग और इनकम्प्लीट, देन द डिटेन्यू वुड बी इंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड। अब इसमें बहुत सारी अथॉरिटी हैं, इसमें सबसे अच्छी अथॉरिटी जो मेरे हिसाब से है वो है प्रभुदयाल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, EIR 1974 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 183। इसमें बहुत कैटेगोरिकली बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इफ द ग्राउंड्स आर वेग एंड इनएडिक्वेट द डिटेन्यू हैज अ राइट टू आस्क फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स बट दैट इज इमटेरियल। द ऑर्डर में बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड इवन दो डिटेन्यू हैज नॉट आस्क्ड फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स। हिज फेलियर टू डू सो मे बी रेलिवेंट ओनली फॉर कंसिडरिंग द क्वेश्चन दैट वेदर द ग्राउंड्स आर वेग और नॉट। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर कोर्ट्स ने पाया कि ग्राउंड्स आर वेग और इनएडिक्वेट तो डिटेंशन ऑर्डर वुड बी सेट असाइड इवन दो द डिटेन्यू हैज अ राइट टू आस्क फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स। पर अगर उसने फर्दर पर्टिकुलर्स नहीं भी मांगे तब भी वो पॉइंट इमटेरियल है एंड ऑर्डर ऑफ डिटेंशन मे बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड इवन दो द डिटेन्यू हैज़ नॉट आस्क्ड फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स। तो ये आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा कि हमने जो ग्राउंड्स प्रोवाइड किए थे उस पॉइंट को लेके कभी भी डिटेन्यू ने तो ये सवाल नहीं उठाया कि वो वेग और इनएडुकेट थे, और अगर वो वेग और इनएडुकेट होते तो डिटेन्यू हमसे बोलता, पर उसने बोला ही नहीं। तो ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट्स में काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी कोर्ट ने खुद ही पा लिया कि ग्राउंड्स आर वेग और इनएडुकेट, then the court will set aside the order of detention even though the detainee might not have asked for further particulars, even though जब भी वेग और inadequate representations grounds of detention दिए जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में डिटेन्यू does have a right to ask for further particulars। जैसे कि मान लीजिए ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो प्रोवाइड किए गए हैं उसके हिसाब से
द मैन हैज़ डेस्परेट हैबिट एंड इज़ ऑफ डेंजरस कैरेक्टर. ठीक है, इस बेसिस पे डिटेंशन ऑर्डर है कि जो मैन है वो डेस्परेट हैबिट्स का है और डेंजरस कैरेक्टर है, डेंजरस कैरेक्टर का है, सो ही मस्ट बी डिटेन्ड. अब ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा वेग है. ठीक है, तो ऐसे में डिटेंशन ऑर्डर वुड नॉट सर्वाइव जुडिशियल रिव्यू. वैसे ही let us suppose grounds are served on the detainee in a language which could not be interpreted by a layman but needs a lawyer's assistance. यहाँ पे भी वेग होगा क्योंकि देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा रहा है. ही हैज़ नो क्लू कि भाई किन ग्राउंड्स पे रखा है. लीगल असिस्टेंस का राइट तो जाने ही दीजिए. अब मान लीजिए सुपर टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन दे दिए गए, उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई क्या बोल रहा है ये पैसेज. तो ऐसी सिचुएशन में भी ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन वेग हो जाएंगे. वेयर द ग्राउंड सर्व्ड ऑन द डिटेन्यू आर इन अ लैंग्वेज which could not be interpreted by a layman but it needs a lawyer's assistance, they were held to be vague. And I'll quote you the case law. Case is Ramkrishnan versus Delhi, AIR 1953, Supreme Court, page number 318. Always remember, since the legal aid is denied to the detainee, the detaining authority should take the measures to make sure that the grounds provided to the detainee are clear beyond doubt and do not leave the detainee on his own resources to interpret the grounds. अब आप जानते हैं कि लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिससे कंसेप्ट सिंप्लीफाई भी किए जा सकते हैं, कॉम्प्लिकेट भी किए जा सकते हैं, है ना. तो ये जजमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इवन दो लेट अस सपोज दैट द डिटेनिंग अथॉरिटी ऐसा इंटरप्रिटेशन करती है कि ठीक है हमें उसे ग्राउंड प्रोवाइड करने हैं, ठीक है हमें उसे एडिक्वेट ग्राउंड्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है हमें उससे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है उसी लैंग्वेज में जिसको वो समझता है, पर ये तो कहीं नहीं लिखा है कि हमको उसको समझाना है. तो हम लोग ऐसे ग्राउंड्स ऐसे टेक्निकली वर्ड कर देते हैं कि उसको समझ ही में ना आए. अब ऐसी सिचुएशन में भी ग्राउंड्स वेग हो जाएंगे. ठीक है, लैंग्वेज के मेथड से किसी भी सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंपल किया जा सकता है. लेट मी जस्ट फ्रेम अ कॉम्प्लिकेटेड पैसेज फॉर यू जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लैंग्वेज एज अ टूल can be used to make a simple thing very complicated. Let me quote my own passage. I am saying, I am discountenanced by the contemporaneous trends of Fissiparis prolectivities of the society. It innovates the NEMA of the fraternity of the sovereign nation. The Supreme Concordat was framed by the founding fathers among we the people, so that we could never succumb to insidious influences of communalism. शायद आप में से कुछ लोगों को ये पैसेज ना समझ में आए. ये मैंने एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में अपनी बेस लेवल इंग्लिश पे लिखा था. ठीक है, बट बेसिकली व्हाट डू आई मीन बाय दैट. अब देखिए, द सेम लैंग्वेज विच इज मेकिंग दिस पैसेज कॉम्प्लिकेटेड फॉर मैनी could be used to make this passage way simpler. What I am basically saying in this passage is कि I am deeply saddened by the current trends of communalism that is occurring in the country. This erodes the fraternity that is mentioned in the preamble. The Supreme Constitution, which is the contract among we the people, was framed for the very intention so that we never succumb to the evil influences of communalism. मैंने सेम बात दोनों ही इंस्टेंसेस में की, पर एक जगह ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरी जगह ये बहुत सिंपल है ना. तो डिटेंशन अथॉरिटी क्या नहीं कर सकती, वो ये नहीं कर सकती कि वो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन इस तरीके से बताए कि जो डेटेन्यू है वो कंफ्यूज हो जाए, उसकी समझ ही में नहीं है कि भाई बोला क्या जा रहा है मेरे से, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि व्हाट द डिटेनिंग अथॉरिटी मीन्स बाय दीज ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन. सो द डेटेन्यू must properly understand what is being said to him, and it is the duty of the detaining authority to take the measures which make clear beyond doubt
to the detenue that on what grounds he has been detained, and the detaining authority should not leave it to the detenue that he is on his own to interpret the grounds. डिटेनिंग अथॉरिटी ये नहीं कर सकती कि उसके सामने वो डॉक्यूमेंट फेंक दे और क्या पढ़ो आप समझो. दिस इज़ नॉट द वे. ठीक है. ऑफ कोर्स अगर वो सिंपल लैंग्वेज में डिटेनी को समझ में आ जाता है तो बात ठीक है, लेकिन अगर उसे समझ ही में नहीं आ रहा है, ही कांट ग्रास्प इट, देन दैट्स नॉट करेक्ट. जैसे आपको एक केस बताता हूँ, हरि कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 911. अब in this case the grounds were served on the detainee in English language which he did not know. He asked for a Hindi version of the grounds which was not supplied to him. Supreme Court quashed his detention and emphasized that in order to enable the detainee to make an effective representation, he should have the knowledge of the grounds of detention. Communication envisages bringing home to the detainee effective knowledge of the facts and circumstances on which the order was based. To a person not conversant with the English language, the grounds must be explained in a language in which he understands. Next illustration is Ichu Devi versus Union of India. Citation is AIR 1980 Supreme Court, page number 1983. In this case, a smuggler was detained under Coffee Posa and he challenged his detention on several grounds, of which one proved to be fatal. That is, that the detaining authority has not served on the detainee copies of several documents on which the authority had relied in the grounds of its detention. Supreme Court ruled that in instant case, the continued detention of the petitioner became illegal because of the non-compliance with the statutory and the constitutional requirement. That is, that he should have been supplied the copies of the document on which the detention order was based. Next case is Kamaru Nisa versus Union of India. Citation is AIR 1991 Supreme Court, page number 1640. इस पे ऑन द पॉइंट ऑफ सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि दो चीज़ें दिखानी होती हैं डेटेन्यू को, कि पहला, ही हैज़ नॉट बीन सप्लाइड द कॉपीज ऑफ सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन टाइम ऑन डिमांड, और साथ ही साथ कि दैट नॉन सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन हैज़ इम्पेयर्ड हिज राइट टू मेक एन इफेक्टिव एंड पर्पसफुल रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट हिज डिटेंशन. ठीक है. तो ये हर केस में नॉन सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज नॉट फेटल. इट इज ओनली फेटल व्हेन दैट नॉन सप्लाइंग ऑफ दैट डॉक्यूमेंट और सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन टाइम ऑन डिमांड हैज इम्पेयर्ड द डिटेन्यू ऑफ हिज राइट टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. और ये भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कई ग्राउंड्स हैं और एक भी ग्राउंड अगर कोर्ट ने वेग या इनएडिक्वेट पा लिया कि और उस ग्राउंड के बेसिस पे राइट ऑफ डिटेन्यू टू मेक द रिप्रेजेंटेशन इज इन्फ्रिंज्ड, देन द डिटेंशन ऑर्डर विल बिकम इनवैलिड. ठीक है. ये राम बहादुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है, AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 223. इसी की वजह से सेक्शन 5A आया था NSA में, नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट में, जिसके हिसाब से अगर डिटेंशन ऑर्डर दो या ज़्यादा ग्राउंड पे बेस्ड है तब ये माना जाएगा कि डिटेंशन ऑर्डर हैज़ बीन मेड सेपरेटली ऑन ईच ऑफ द ग्राउंड्स. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर एक ग्राउंड क्वाश हो गया फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर, द ऑर्डर वुड नॉट फॉल इफ़ द अदर ग्राउंड सबसिस्ट. ठीक है. इसी जजमेंट की डिफ़िकल्टी की वजह से सेक्शन 5A NSA में आया था. वरना पहले क्या होता था, अगर मल्टीपल ग्राउंड्स हैं, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट दे फॉर्म जस्ट वन चेन. ठीक है. तो अगर आपने एक ग्राउंड को हटा दिया तो सारे ग्राउंड अपने आप फॉल कर जाएंगे. एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता था, पर अब नहीं है. NSA में कम से कम तो नहीं है. सेक्शन 5A ऑफ द NSA उसमें ये हो गया है कि अगर दो या उससे ज़्यादा के ग्राउंड्स के बेसिस पे डिटेंशन ऑर्डर है तो उनमें से अगर एक डिटेंशन ऑर्डर क्वाश हो गया फॉर वन रीज़न और दी अदर, दी डिटेंशन ऑर्डर वुड स्टिल बी वैलिड फॉर दी अदर ग्राउंड्स जो क्वाश नहीं हुआ है. पहले ऐसा नहीं होता था. अब एक और चीज़ होती है, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड टू कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन सो मेड बाय द डिटेन्यू. आप देखिए
आर्टिकल 22 क्लॉज 5 डज नॉट से टू whom द रिप्रेजेंटेशन इज टू बी मेड, या रिप्रेजेंटेशन का करना क्या है। लेकिन आर्टिकल 22 क्लॉज 5 को अगर मीनिंगफुल बनाना है तो एक प्रॉपर कंसिडरेशन माना जाना चाहिए कि कंसिडरेशन तो होगा बट इट शुड बी अ प्रॉपर कंसिडरेशन। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके सामने रिप्रेजेंटेशन किया ही हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू कंसिडर इट, नो, ही हैज़ द ऑब्लिगेशन टू कंसिडर इट। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट एंड जो इंटरप्रिटेशन जो प्लेस्ड है आर्टिकल 22 क्लॉज 5 पे, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को जब रिप्रेजेंटेशन जाता है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है टू कंसिडर सच रिप्रेजेंटेशन बिफोर सेंडिंग इट टू द एडवाइजरी बोर्ड। तो मतलब देयर आर टू चैनल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द फर्स्ट चैनल कैन गो टू द गवर्नमेंट एंड द नेक्स्ट देयर आफ्टर द गवर्नमेंट फॉरवर्ड्स इट टू द एडवाइजरी बोर्ड। ध्यान रखिएगा, जो भी रिप्रेजेंटेशन मेड हो रहा है उस पर डिटेन्यू का सिग्नेचर होना चाहिए और डेट भी होनी चाहिए, अदरवाइज इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिप्रेजेंटेशन विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 5। ये एक प्रोसीजरल पॉइंट बता रहा हूँ, इट शुड बी साइंड एंड डेटेड। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो डिटेन्यू का रिप्रेजेंटेशन है जो गवर्नमेंट को कंसिडर करना है, इट इज़ अ सेफ गार्ड इन एडिशन टू द कंसिडरेशन ऑफ हिज केस बाय द एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, और ये जो कंसिडरेशन है it has to be proper consideration by the authority to whom it is made. The right of representation under Article 22 Clause 5 would be a mere formality if it weren't a proper consideration. तो ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन जिस अथॉरिटी को जा रहा है उसको प्रॉपर कंसिडरेशन करना है उस रिप्रेजेंटेशन का। वो ऐसे नहीं कर सकते कि रिप्रेजेंटेशन आया, देखा उसने रिजेक्ट। इस पॉइंट पे आप कोट कर सकते हैं मोहिनुद्दीन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1977। ठीक है, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट गोज विदाउट सेइंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मेक द रिप्रेजेंटेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 22 क्लॉज 5 मस्ट बी टेकन टू इंक्लूड बाय नेसेसरी implication the constitutional right to a proper consideration of the representation by the authority to whom it is made. The right of representation under Article 22 Clause 5 is a valuable constitutional right and not a mere formality. So now you may understand that the consideration of the representation by the detaining authority is independent of the reference to the advisory board. ठीक है, तो एक रिप्रेजेंटेशन जो डिटेनिंग अथॉरिटी को जाता है दैट इज इंडिपेंडेंट टू द रेफरेंस ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। अब ज़्यादातर जगह गवर्नमेंट इज द डिटेनिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि गवर्नमेंट may itself take the view that it is no longer necessary to detain the detainee, और ऐसे केस में the government may release the detainee, तो nothing else would be left to forward to the advisory board. तो प्रॉपर आइडिया ये है कि द गवर्नमेंट मस्ट इटसेल्फ शुड कंसिडर द detainee's रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद इफ इट डिसएग्रीज इट मे फॉरवर्ड इट टू द एडवाइजरी बोर्ड। क्योंकि अगर वो रिप्रेजेंटेशन से एग्री कर गई तो वो डिटेन्यू को रिलीज कर देगी गवर्नमेंट, है ना। ऐसे केस में एडवाइजरी बोर्ड के पास कुछ भी जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 दो अलग अलग ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है गवर्नमेंट पे। पहला, टू गिव द डिटेन्यू द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड कंसिडर इट एक्सपीडिशियसली। ठीक है, और ये जो कंसिडरेशन है कैसा कंसिडरेशन होगा, प्रॉपर कंसिडरेशन। ठीक है, दूसरा ऑब्लिगेशन क्या है, टू रिफर द केस टू द एडवाइजरी बोर्ड एंड टू ऑब्टेन इट्स रिपोर्ट। इस पॉइंट पे अगर आपको जजमेंट मेंशन करना हो तो यू विल ऑलवेज मेंशन हरधन साहा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। साइटेशन इज AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2154। सुप्रीम कोर्ट सेड, एंड आई कोट, if the representation of the detainee is received before the matter is referred to the advisory board, then the detaining authority considers the representation. If the representation is made after the matter has been referred to the advisory board, the detaining authority will consider it before it will send the representation to the advisory board. मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर डिटेन्यू ने रिप्रेजेंटेशन पहले ही भेज दिया, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड के पास मैटर रेफर होने से पहले ही डिटेन्यू ने अपना रिप्रेजेंटेशन मेक कर दिया डिटेनिंग अथॉरिटी को,
तो डिटेनिंग अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करना है। और अगर एडवाइजरी बोर्ड को मैटर रेफर किया जा चुका है और उसके बाद डिटेनिंग ने रिप्रेजेंटेशन मेड किया है, तो डिटेनिंग अथॉरिटी विल कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन एंड देन सेट द रिप्रेजेंटेशन टू द एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज अ डुअल चैनल। Let me mention one more case, that is Balchand Chaurasia versus Union of India, AIR 1978, Supreme Court, page number 297. Here the Supreme Court has held that non-consideration by the government of the representation filed by the counsel on behalf of the detainee will vitiate his detention. Representation made by the counsel was representation made by the detainee himself, and it ought to have been considered by the authority concerned. वैसे ही कृत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, साइटेशन इज AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1621। ये सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था कि जो ऑर्डर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मेड हुआ था, इट वाज मेड बाय होम मिनिस्टर, बट डिटेन्यू का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेक्रेटरी ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्रेटरी हैज़ नो जुरिसडिक्शन टू डू सो और डिटेन्यूज फर्दर डिटेंशन हैज़ बिकम इनवैलिड। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली कंसिडर करे, प्रॉम्प्टली कंसिडर करे और एक्सपीडिशियसली डिसाइड करे, ठीक है। अब इसके लिए कोई रिजिड टाइम लिमिट नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इट वुड बी डिटरमाइंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस कि एक्सपीडिशियसली या प्रॉम्प्टली रिप्रेजेंटेशन डिसाइड हुआ है या कंसिडर हुआ है या नहीं। इस पॉइंट पे जो अथॉरिटी है वो है राजम्मल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 684। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द पोजीशन देयरफॉर now is that if the delay is caused on the account of any indifference or lapse in considering the representation, then such delay will adversely affect the detention of the prisoner. In other words, it is for the authority concerned to explain the delay, if any, in disposing the representation. It is not enough to say that the delay was very short. Even longer delay can well be explained. So the test is not of duration or range of delay, but how it is explained by the concerned authority. रजम्मल के केस में क्या हुआ था कि डिटेंशन ऑर्डर वाज मेड अंडर द स्टेट लॉ, ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया था बिकॉज देयर वाज अनएक्सप्लेन्ड डिले ऑफ 5 days इन कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटेन्यू। अब एक्सप्लेनेशन ये दी गई थी कि मिनिस्टर वाज ऑन टूर, ठीक है, वो टूर पे गए हुए थे, मीटिंग्स थी, एसेट्रा एसेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इज नॉट अ जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन व्हेन द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन guaranteed by Article 21 is involved. The absence of minister at the headquarters is not sufficient to justify the delay. So always remember what is the dual obligation under Article 22 clause 5. पहले तो मैं Article 22 clause 5 को mention कर देता हूँ. To communicate the grounds of detention to the detainee at the earliest. Secondly, to afford him earliest opportunity of making the representation against the detention order. That implies the duty to consider and decide the representation when made as soon as possible. ये dual obligation है आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में। एक सिचुएशन और अराइज कर सकती है जब डिटेन्यू का जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और जो डिस्पोजल है बाय द अथॉरिटीज़ वो टाइम बाउंड मैनर में नहीं हुआ। ये सिचुएशन मैं बताता हूँ कौन सी अराइज कर सकती है कि जहाँ पे ओरिजिनल डिटेंशन ऑर्डर वैलिड है, ठीक है, जब अथॉरिटी ने डिटेंशन ऑर्डर प्रोक्लेम किया या ऑर्डर मेक किया तो ऐसी सिचुएशन में द डिटेंशन ऑर्डर वाज वैलिड, बट व्हाट वेंट रॉन्ग वाज दैट द अथॉरिटी कंसर्न्ड डिडंट डिस्पोज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटेन्यू, then that might render the continued detention illegal even though the original detention order was valid. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ओरिजिनल डिटेंशन ऑर्डर तो वैलिड रहता है, लेकिन क्योंकि आपने रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर दी, मतलब रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करने में गड़बड़ कर दी, अनएक्सप्लेन्ड डिले है, अननेचुरल डिले है एसेट्रा, तो ऐसी सिचुएशन में कंटिन्यू डिटेंशन इलीगल हो सकती है, ठीक है। इस पर अगर आपको केस लेना है तो
मीना जयेंद्र ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3517। वैसे ज़रूरत नहीं है इसको मेंशन करने की, ये बस मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने के लिए किया था। ये केस इसी पॉइंट पे है कि डिटेन्यूज राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज डिस्पोजल बाय अथॉरिटीज डज नॉट विशिएट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन पास बाय द डिटेनिंग अथॉरिटी, इट रेंडर्स द कंटिन्यूड डिटेंशन इलीगल। ठीक है, अगर ओरिजिनली डिटेंशन ऑर्डर ही इनवैलिड या मैलिफाइड ग्राउंड पे बेस्ड है तो वो तो रूट से ख़त्म हो जाएगा, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिटेंशन ऑर्डर इज वैलिड बट there has been an infraction of the detainee's right to make the representation and it is disposal by authorities. That renders the continued detention illegal even though it does not vitiate the order of detention that was originally passed by the detaining authority. ठीक है, एक और केस बताता हूँ आपको, वो है ग्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 15 फरवरी 1991 को डिसाइड हुआ। इसका एक और साइटेशन है, इट वाज रिपोर्टेड इन AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1090। इस केस में डिटेन्यू सेंट हिज रिप्रेजेंटेशन टू द एडवाइजरी बोर्ड, द बोर्ड कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन एंड सेंट इट्स ओपिनियन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर आफ्टर द गवर्नमेंट कन्फर्ड द ऑर्डर बट डिड नॉट कंसिडर द डिटेन्यूज रिप्रेजेंटेशन। मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर तो कन्फर्म किया but it did not consider the detainee's representation. Hence, there was no independent consideration of the detainee's representation by the government at any given point of time. ठीक है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि there has been a breach of the detainee's right under Article 22 Clause 5. The obligation of the government to consider the representation is different, and in addition to the obligation of the board to consider the same. The detainee's right to have the representation considered by the government under Article 22 Clause 5 is an independent of the consideration of the detainee's case and his representation by the authority board, by the advisory board. तो मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि the detainee's right to have the representation considered by the government under Article 22 Clause 5 is a different right. मतलब dual channels होते हैं, एक गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन का राइट है, दूसरा एडवाइजरी बोर्ड के पास है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि द डिटेन्यूज राइट टू हैव द रिप्रेजेंटेशन कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द डिटेन्यूज केस एंड इज रिप्रेजेंटेशन बाय द एडवाइजरी बोर्ड। अब ये सारी चीज़ें आर्टिकल 22 क्लॉज 5 से निकल ली हैं, जबकि पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट आगे चल के बोलता है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 5 कास्ट अ डुअल ऑब्लिगेशन ऑन द डिटेनिंग अथॉरिटी। पहला, टू कम्युनिकेट द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू द डिटेन्यू एट द अर्लीस्ट, और दूसरा, टू अफोर्ड हिम द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर विच इम्प्लाइज द ड्यूटी टू कंसिडर एंड डिसाइड द रिप्रेजेंटेशन व्हेन मेड एज सून एज पॉसिबल। अब जरा क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 22 पे आ जाते हैं, जिसमें लिखा है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच द पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of the advisory board in accordance with the provision of subclause A of clause 4. B, the maximum period for which a person may in any class or classes of cases be detained under the law providing for preventive detention. And C, the procedure to be followed by an advisory board in an inquiry under subclause A of clause 4. एक बार clause 4 of आर्टिकल 22 फिर से पढ़ देता हूँ, जस्ट इन केस यू हैव फॉरगॉटन। आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 कहता है कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटेड डिटेंशन शैल ऑथराइज डिटेंशन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 months unless an advisory board consisting of the person who have been or are qualified to be appointed judges of the High Court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention, and B, such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under subclauses A and B of clause 7. तो clause 7 ये कह रहा है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो डिस्पेंस कर सकती है एडवाइजरी बोर्ड से, और a person may be detained for a period longer than 3 months under any law which provides for preventive detention
without having an opinion of the advisory board. इस पे मैं एक केस मेंशन करना चाहता हूँ, वो है शंभुनाथ सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AR 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1425. वहाँ पे सेक्शन 17A ऑफ मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट narrated 5 of 6 heads mentioned in the constitution for which a law of preventive detention could be made as the circumstances under which reference to the advisory board was not needed. 6 में से 5 सर्कमस्टेंसेज में एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनके ओपिनियन की कोई ज़रूरत नहीं है, वेयर द प्रिवेंटिव डिटेंशन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 17A ऑफ मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट. Supreme Court declared that section unconstitutional. It treated Article 22, Clause 7, Subclause A as an exception to Article 22, Clause 4. Supreme Court ruled that preventive detention in cases for over 3 months, the opinion of the advisory board is the normal rule. जब आप एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन ले लेते हैं तभी डिटेंशन ओवर 3 मंथ्स इज वैलिड, ठीक है, ये नॉर्मल रूल है. और इस रूल का डिस्पेंसेशन तभी जस्टिफाई हो सकता है जब कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस अराइज हो. देयरफॉर द लॉ अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 7 सब क्लॉज ए बाय इट्स नेचर वुड बी अ ड्रास्टिक लॉ एंड शुड देयरफॉर अप्लाई टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज एंड एक्सेप्शनल एक्टिविटीज एक्सप्रेसली and in precise terms prescribed by the parliaments. And merely repeating in verbatim the heads of the legislation for the preventive detention as given in entry 9 in list 1 and entry 3 of list 3 of the 7th schedule of the constitution would not satisfy article 22 clause 7 subclause A. It would neither be prescribing the circumstances nor the class of cases to which the opinion of advisory board would not be essential, or the opinion of the independent body, that is the advisory board, would not apply. And the parliament must apply its mind and prescribe specific situations and types of cases which require a drastic treatment by the way of dispensation of advisory board. ठीक है, तो ये एक केस था आर्टिकल 22 क्लॉज 7 के सब क्लॉज ए पे. बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि मीसा का सेक्शन 17A स्ट्रक डाउन हुआ था. और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट इज़ नॉट एनफ फॉर द पार्लियामेंट टू मेयरली रिपीट बाय वर्बैटिम द हेड्स ऑफ लेजिस्लेशन एज प्रोवाइडेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली एंट्री 9 इन लिस्ट 1 एंड एंट्री 3 इन लिस्ट 3. दैट वुड नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 7 सब क्लॉज ए. It is essential that the parliament should prescribe the circumstances and the class of cases जिसके लिए ये ड्रास्टिक प्रोसीजर फ्रेम हो रहा है, where the advisory board and its opinion is being dispensed with, and the parliament must apply its mind and prescribe specific situations and the types of cases which require such drastic treatment. ठीक है, तो क्लॉज 7 वाला पॉइंट मैं पहले ही डील कर लेना चाहता था. अब मैं आता हूँ जरा आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 पे. इस पर शॉर्ट सा डिस्कशन है, ज़्यादा नहीं है इस पर. अब जब आप आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ये जान लेंगे कि ऑर्डिनरली प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ में 3 मंथ से ज़्यादा के पीरियड के लिए डिटेंशन नहीं हो सकती अनलेस द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड इज ऑब्टेन्ड. ठीक है, इस पॉइंट पे एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज़ नंदलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2041. The Supreme Court said that the advisory board should report within the 3 months of the date of detention order that in its opinion there is sufficient cause for the detention of the detenue, and also मतलब साथ ही साथ एक और requirement है, and also the government should itself confirm and extend the period of detention beyond 3 months within the 3 months time limit. Failure on the part of the government to do so will render the detention invalid as soon as 3 months elapse, and any subsequent action by the government cannot have the effect of extending the period of detention beyond 3 months. So while confirming the order of detention, the government
has to not only pursue the report of the advisory board but apply its mind to the material on record. तो इस जजमेंट से आपको बस इतना पता चलता है कि एडवाइजरी बोर्ड को 3 महीने के अंदर की टाइम लिमिट के अंदर should decide that whether there is a sufficient cause for detention of the detainee, और गवर्नमेंट को भी कंफर्म करना है और एक्सटेंड करना है पीरियड ऑफ डिटेंशन बियॉन्ड 3 months विद इन द फर्स्ट 3 months टाइम लिमिट. अगर वो नहीं कर पाए then the failure on the part of the government to do so will render the detention order invalid as soon as the original 3 months elapse, and any subsequent action by the government will not have the effect of extending the period of detention beyond 3 months. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन फॉर डिटेंशन ऑर्डर होता है ना, इट हैज़ टू बी इन राइटिंग एंड इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू एज वेल. ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं कम्युनिकेट किया गया तो ये एक इरेगुलरिटी है जो इनवैलिडेट नहीं करती है किसी भी डिटेंशन को इफ़ इट इज़ अदरवाइज वैलिड. ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था इन द केस ऑफ देव सदन रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, EIR 1972, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1924. अब सवाल आता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो आपको पता है कि 3 months लिखा है. ठीक है, बट अगर एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन ले लिया तो 3 months से ज़्यादा भी हो सकता है. कम टू आर्टिकल 22 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए. वो कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 7. तो इससे सवाल ये उठता है कि क्या पार्लियामेंट के ऊपर ये ड्यूटी है टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर विच एनी पर्सन कैन बी डिटेन्ड. इसका आंसर हमें मिलता है इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अशोक दे, AIR 1972, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1660. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो प्रोविज़न है ये सिर्फ परमिसिव प्रोविज़न है. इट डज नॉट ऑब्लाइज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब एनी मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पार्लियामेंट टू फिक्स द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इन टर्म्स ऑफ ईयर, मंथ्स और डेज. इट इज़ वैलिड टू फिक्स such period in the terms of specific event, for example until the expiry of the emergency proclaimed under article 352. मतलब इवेंट्स के बेसिस पे भी पार्लियामेंट टर्म फिक्स कर सकती है कि लेट अस सपोज कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे इंसर्जेंसी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो पार्लियामेंट लॉ में ये भी प्रिस्क्राइब कर सकती है कि जब तक इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ नहीं सीज हो जाती तब तक प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ वैलिड. कुछ वो ऐसा लॉ बना सकती है. सिमिलरली वो ऐसा भी लॉ बना सकती है कि टिल द एक्सपायरी ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर वुड रिमेन इन फोर्स. ऐसा लॉ वो बना सकती है दैट इज विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब ईयर्स, मंथ्स और डेज. ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई वुड सी यू टुमारो. कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू कैसे होता है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. दे आर सेवरल हेड्स जिसके बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू होता है ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. वो हेड्स आपके लिए जानने ज़रूरी हैं. ठीक है, जैसे उसमें मैलिफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एसेट्रा एसेट्रा. ये सारी चीज़ें हैं विच आर एसेंशियल फॉर यू टू नो कि ये चैलेंज कैसे होती हैं. इन पे भी कभी कभी सवाल आ जाता है कि प्रिस्क्राइब under what headings or under or illustrate कि on what grounds can the judiciary interfere with the order of preventive detention. ठीक है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे. So that is it for today. I'll see you tomorrow.